Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear student. I welcome you in your course Political Science, and this is your course instructor Amreen Ayaz Khan. Well, our topic is liberty. So, first of all, we are going to discuss the definition of liberty, what liberty is. Liberty is derived from a Latin word liber, which means free or independent. Free or independent is the meaning of liberty. The concept of liberty occupies a very important place in civics. Moreover, it has made powerful appeal to every man in every age. It is a source of man wars and revolutions. In the name of liberty, war, battles, revolutions, and struggles have taken place in the history of mankind. Whereas liberty means that unrestricted freedom of the individual to do anything he likes to do. But this sort of unrestricted liberty is not possible in society. यहाँ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इस किस्म की लिबर्टी जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं होती किसी भी सोसाइटी में. Well, liberty is not a license to do anything one pleases. लिबर्टी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक इंसान जो भी करना चाहता है वो उसको करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है. As this would end up in anarchy and the very extreme of liberty. Restrictions are necessary in the interest of general welfare. Restrictions का भी बहुत अहम रोल है लिबर्टी में. वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे आर इम्पोज इन द फॉर्म ऑफ लॉज. अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ऐसे ही नहीं लगा दी जाती हैं. रिमेंबर डियर स्टूडेंट कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक लॉज की फॉर्म में लागू की जाती हैं, इम्पोज की जाती हैं. लॉ इज़ द कंडीशन ऑफ लिबर्टी. लॉ ही जो है एक कंडीशन है लिबर्टी की. वाइल लॉज आर restrictions to liberty. It is imperative that the so imposed laws are not unjust as excessive and stringent restriction. Stringent mean firms hamper the intellectual and moral growth of the individual. Hamper mean the basket. So liberty has two aspects. And these aspects are negative and positive aspects. लिबर्टी दो किस्म की होती है, दो पहलू हैं इसके. पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. Well, whereas the definition of liberty is concerned, Montesquieu, a French philosopher, defined liberty as liberty means the power of doing what we ought to do. And second definition is given by Professor Seeley. Liberty means the absence of restraints. T.H. Green defines liberty as it is the power to do or enjoy something that is worth doing or enjoying in common with others. Liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. As far as the meaning of liberty is concerned, liberty means the power of doing what we ought to do. यानी कि एक ऐसी ताकत, एक ऐसी कुव्वत की आज़ादी मिल जाना है कि इसमें हम जो चाहें या हम जो करना चाहते हैं वो हम करें. इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी और डिस्पोटिक गवर्नमेंट. डिस्पोटिक मैंने आपको पहले भी बताया था. डिस्पोटिक मीन डिक्टोरियल गवर्नमेंट होता है जिसमें डिक्टेटरशिप होती है, और कंट्रोल, इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्शंस. इट इज़ अ पावर ऑफ चूजिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग फॉर वन सेल्फ. फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल और restrictions. It is the quality individual have to control their own actions.
ये एक ऐसी क्वालिटी भी है कि हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को अपने एक्शंस को कंट्रोल करने को भी लिबर्टी बोला जाता है. Well, we can further define or further describe liberty as taken together. It must be understood that liberty exists not merely in the absence of restraints. लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पर जो है वो पाबंदियाँ नहीं हैं तो आपके पास लिबर्टी है, but in the presence of opportunities as well. The following definition embrace both aspects of liberty. और ये जो definition हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं इसमें दोनों तरह के aspects हैं. मीन both the aspects of liberties are positive liberty as well as negative liberty. Well, dear student, liberty is the product of rights. लिबर्टी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको आपके हकूक़ जो है वो किसी भी मुआशरे के लोगों को उनके हकूक़ फ्राहम किए जाते हैं. इट इज़ अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू डू डिज़ायर्ड थिंग विद द मिनिमम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशंस कॉन्सोनेंट विद अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी. Whereas the nature and scope of the liberty is concerned, so well we see that the idea of liberty may be analyzed in terms of freedom as the quality of human being, कि हर इंसान को एक फ्रीडम जो है वो मिली है. एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर गवर्नड, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. Only human being is capable of freedom. इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, जैसे कि आप सब जानते हैं, उसी को ही फ्रीडम के जो वो काबिल बनाया गया. मैन एज ए होमो सैपियन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स एज ही क्लेम्स टू हैव एन एम इन लाइफ. वेल डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ही अहम है कि एम इन लाइफ होना जो है वही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है, कि वो एक बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारता. वो दुनिया में बग़ैर किसी मकसद के नहीं भेजा गया, बल्कि एक मकसद के तहत ज़िंदगी से नवाजा गया है और उसने ये ज़िंदगी उस मकसद को हासिल करने में गुजारनी है या उसको हासिल कर लेना है इसी ज़िंदगी में. नेक्स्ट वी हैज़ मैन हैज़ क्रिएटेड मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन. मैन हैज़ टेम्ड एंड कंट्रोल्ड एनिमल्स, ठीक है, और उनको अपने पास एज ए टेम एनिमल भी रखते हैं. फ्रीडम इज़ द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ मैन. ह्यूमन बीइंग कैपेसिटी टू गेन साइंटिफिक नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ दियर फ्रीडम. एक जो नॉलेज हासिल करना और नॉलेज हासिल करने की जो आज़ादी है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड एज अ सोर्स ऑफ फ्रीडम. वेल, as far as the nature and scope of freedom is concerned, freedom as the condition of human being, liberty is usually defined as the absence of constraint. अमूमन हम लिबर्टी यही समझते हैं कि पाबंदियाँ नहीं हैं तो हमारे पास लिबर्टी, हम आज़ाद हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हैज़ वेरी वाइड इम्प्लीकेशन इन द स्फेयर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. सो वी डिमांड लिबर्टी फॉर द human being as a condition of life because we treat him to be a rational creature. Next, since here our demand is confined to the removal of external restraint, तो यहाँ पर डिमांड क्या है कि जो जितनी भी बैरूनी पाबंदियाँ हैं वो कन्फाइंड हो जाएं. Hence it is termed as negative liberty. और इस चीज़ को हम जो है वो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी जो कि नेगेटिव लिबर्टी है कंसीडर करते हैं. नाउ अ मैन मे नॉट बी फ्री इवन इफ देयर इज़ नो एसेंशियल रेस्ट्रेंट. फ्रीडम इन द वाइडर सेंस रिक्वायर्स दैट मैन शुड नॉट फील एनी इंटरनल ऑन और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स. दिस मीन फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल पेन, कि एक तो फिजिकल पेन नहीं होगी, डिजीज़, इग्नोरेंस, फियर और वांट्स, इन तमाम चीज़ों से फ्रीडम मिलती है. इन तमाम चीज़ों का फ्रीडम होना भी एक तरह से इसके स्कोप में है. अ स्टेट टेंड टू सिक्योर पॉजिटिव लिबर्टी फॉर इट्स सिटीजन्स, यानी कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो लिबर्टी एक स्टेट जो है वो देने का इरादा रखता है. वी विश टू हैव फ्रीडम फॉर द रैशनल एजेंट. If a person is not free in the real sense and still he is not keen to have freedom, efforts should be made to arouse his
conscience and made him anxious to win his freedom. As far as the classification of liberty is concerned, there are many types of liberty: natural liberty, moral liberty, social or civil liberty. And social and civil liberty is further classified into personal liberty, political liberty, economic liberty, domestic liberty, national liberty, and international liberty. So now in our upcoming slide, we are going to discuss in detail all these types of liberty. Well, the natural liberty is complete freedom for a man to do what he wills. कंप्लीट फ्रीडम जो है वो इसमें जो है वो इम्प्लाइज होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट मीन्स एब्सेंट ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि किसी भी किस्म की मुदाखलत से आज़ाद हो इंसान और उसको तमाम आज़ादी और लिबर्टी हासिल है. इट मे बी ईजिली अंडरस्टूड दैट दिस काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ नो लिबर्टी एट ऑल एज मच. और हमें ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इस किस्म की लिबर्टी जो है वो कोई लिबर्टी नहीं है. इट इज़ यूफेमिज़म फॉर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट. ये यूफेमिज़म क्या होता है? यूफेमिज़म मीन एक अग्रीमेंट है, एक सब्स्टिट्यूट है फॉर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट. व्हाट वी कॉल, यानी कि एक जो जंगल वाली ज़िंदगी है उसका सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं. उसके लिए हमने यूफेमिज़म का वर्ड यूज़ किया इस नेचुरल लिबर्टी को, कि एक शख्स जो आज़ाद है वो जो मर्ज़ी करना चाहता है वो करे, और मगर ये हमारा जो वो लिबर्टी के अंडर नहीं आता. जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये वाली लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी के अंडर काउंट नहीं होती. व्हाट वी कॉल लिबर्टी परटेन्स टू रियलम ऑफ मैन सोशल एग्जिस्टेंस. This kind of liberty, in the opinion of social philosophers like Hobbes, Locke, Rousseau, was engaged by men living in the state of nature. Since where there was not state or society, this kind of liberty is not possible at present. तो आज के दौर में जब हम एक इंसान जो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी में रहता है, उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत है, तो वो एक ऐसी लिबर्टी को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. दिस लिबर्टी इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. लिबर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट. अनलिमिटेड लिबर्टी माइट हैव बीन इंगेज ओनली बाय अ फ्यू स्ट्रॉन्ग बट नॉट ऑल. अनलिमिटेड लिबर्टी हम देखते हैं आज भी हमें अपने इर्द गिर्द में कई लोगों में नज़र आती है. तो ये सिर्फ कई या बहुत ही रेयर लोगों के पास होती है. सबके पास हम इसे नहीं कह सकते दैट एवरीबॉडी इज़ having a natural liberty. Well, our next type is social civil liberty. It relates to man's freedom in his life as members of social organization. As such, it refers to a man's right to do what he wills in compliance with the restraint imposed on him in general interest. Our next type is civil or social liberty. Civil or social liberty consists in the right and privileges that society recognize and the state protect in the sphere of private and public life of an individual. As I have earlier mentioned that civil or social liberty is further divided into many types, and the subcategories are personal liberty. Personal liberty is an important variety of social liberty. It refers to the opportunity to exercise freedom of choice, कि आपके पास इंसान के पास जो है वो freedom of choice है in those areas of man's life that the results of his effort mainly affect him in the isolation by which at least he is always surrounded. Our next subcategory is political liberty. It refers to the power of the people to be active in affairs of the state. Political liberty is closely interlinked with the life of man as a citizen. Simply stated, political liberty consists in
provision for universal added franchise, free and fair election, freedom for the avenues that make a healthy public opinion. As a matter of fact, political liberty consists in curbing as well as constituting and controlling the government. तो ये तमाम जो है वो पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लिबर्टी. इकोनॉमिक लिबर्टी जो वो बिलोंग करती है टू द इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर और अ वर्कर इंगेज इन सम गेनफुल ऑक्यूपेशन और सर्विसेज. यानी कि किसी भी सर्विस में, किसी भी ऑक्यूपेशन में जो लिबर्टी काउंट होती है, दैट इज़ इकोनॉमिक लिबर्टी. द इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनसफिशिएंसी. ये दोनों जो है फियर्स का ना होना जो है वो भी इकोनॉमिक लिबर्टी में काउंट होता है. नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिक और फैमिली लिबर्टी. इट इज़ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट टेक्स द डिस्कशन ऑफ लिबर्टी टू द स्फीयर ऑफ मैन्स फैमिली लाइफ. It implies that all association within the state, the miniature community of the family, is the most universal and of the strongest independent vitality. अब डोमेस्टिक लिबर्टी जो है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है? इट कंसिस्ट इन रेंडरिंग द वाइफ आ फुली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, सुइंग एंड बीइंग सूड. सुइंग मीन कि वो अपील कर सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है. कंडक्टिंग बिजनेस और हर ओन अकाउंट और इंगेजिंग फुल पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर हस्बैंड. कि अगर उसको अपने हस्बैंड से कोई भी किसी भी किस्म का फियर है, सो शी कैन टेक एनी लीगल हेल्प इन ऑर्डर टू गेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर हस्बैंड. Moreover, it is establishing marriage as far as the law is concerned on purely contractual basis and leaving the sacramental aspects. Sacramental mean एक as a sacred significance जो हम इसको लेते हैं as a sacred significance of marriage to the ordinance of religion professed by the parties and seeing the physical and mental moral care of the children. ये भी फैमिली लिबर्टी या डोमेस्टिक लिबर्टी में काउंट होता है. नेक्स्ट वी हैव नेशनल लिबर्टी. इट इज़ सिनोनिमस विद नेशनल इंडिपेंडेंस. इसको हम नेशनल इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं. एज सच इट इम्प्लाइज दैट नो नेशन शुड बी अंडर सब्जेक्शन ऑफ अनदर. ठीक है कि हर कौम जो है वो एक आज़ाद कौम है. नेशनल मूवमेंट और वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी आइडेंटिफाइड एज स्ट्रगल फॉर द अटेनमेंट ऑफ नेशनल लिबर्टी. और अपनी लिबर्टी को हासिल करने के लिए वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं या कोई वॉर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो ये सब उनके नेशनल लिबर्टी में काउंट होता है. सो नेशनल लिबर्टी इज़ आइडेंटिफाइड विद पैट्रियोटिज़म. इसको पैट्रियोटिज़म से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इंटरनेशनल लिबर्टी क्या होती है? इट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम कंट्रोल एंड लिमिटेशन. यूज़ ऑफ फोर्स हैज़ नो वैल्यू. कि इंटरनेशनली भी एक कंट्री जो है उस पर किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल या किसी भी किस्म की पाबंदी ना आयद हो. डिस्प्यूट कैन बी सेटल थ्रू पीसफुल मीन्स. अगर कोई किसी भी किस्म की डिस्प्यूट हो, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इन यूजिंग द पीसफुल स्ट्रैटेजीज. ब्रीफली ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल बी फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड वार. तो जब इंटरनेशनल लिबर्टी होगी, पीस होगा, अमन होगा, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स एंड वार से जो है वो एक नेशन या कंट्री जो वो फ्री होगा. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल स्फेयर्स. अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, इट इम्प्लाइज रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मीन रिजेक्शन ऑफ वॉर्स, लिमिटेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट, वेपन्स को कहते हैं, अबेंडनमेंट ऑफ द यूज ऑफ फोर्स एंड पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. द आइडियल ऑफ इंटरनेशनल लिबर्टी इज बेस्ड ऑन द पायस conviction to that extent the world frees itself from the use of force and aggression it gains and peace is given a chance to establish itself. तो इंटरनेशनली उनको ये सब जो है वो लिबर्टी मिलती है. देन देयर इज़ अ पॉइंट
Moral liberty means this type of freedom is centered in the idealistic thought of thinker from Plato and Aristotle in ancient time of Rousseau, Kant, Hegel, Green, Bosanquet in modern times. And moral liberty lies in man's capacity to act as per his or her rational self. Every man has a personality of his own. He seeks the best possible development of his personality and at the same time he desires the same thing for others. कि जैसी वो लिबर्टी अपने लिए चाह रहा होता है, अपने लिए डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहा होता है, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए, ही सीक्स द सेम for the others, and more than this he pays sincere respect for the real worth and dignity of his fellow beings. It is directly connected with man's self or realization के इंसान जो अपनी खुदी को पहचानता है, अपनी इनर सोल को आइडेंटिफाई करता है, मॉरल लिबर्टी के अंडर ही इट इज़ पॉसिबल. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. सो लेट्स डिस्कस what is positive liberty. It does not consist merely in the removal of restrictions. Liberty is best realized in the enjoyment of certain positive opportunities that are necessary for the development of personality. तो इस किस्म की लिबर्टी ही पॉजिटिव लिबर्टी काउंट होगी, जिसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ पॉजिटिव किस्म की ही होंगी. एंड while enjoying these opportunities किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, पर्सनालिटी ग्रूम होगी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ पॉजिटिव लिबर्टी जो है कंसिस्ट इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंडिविजुअल वेयर ही इज़ incapacitated due to socio-economic conditions. And positive liberty in its positive aspects means that removal of those constraints which obstruct the individual in his pursuit of happiness. Rights are a necessary condition for liberty. The state must therefore regulate activities and provide opportunities. The state must restrain those who obstruct social welfare. Hence, the state must create positive conditions, and these positive conditions would be for the welfare of all the human beings, all the citizens of that state. So, our next aspect of liberty is negative liberty. So, negative aspect of the liberty means absence of restraint. कि जब कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, सो वो जो लिबर्टी होगी दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी. दिस एस्पेक्ट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी नो लिमिट्स और कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी. कि किसी भी किस्म की कोई हद, लिमिट, कोई भी कंट्रोल, कोई भी जो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा इंसान पर. द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी आर लॉक, डी टॉकवेली, एडमंड ब्रूक, Thomas Paine, Bentham Spencer, and most significantly J.S. Mill. The negative concept of liberty regaled in the hand of individualists. जो individualist जो थे उनके जो है वो उनका मोटो कह लें आप, वो था जिसको हम नेगेटिव लिबर्टी जो है वो इस किस्म की लिबर्टी की वो डिमांड करते हैं. The state according to them is a necessary evil. उनके ख्याल में स्टेट जो थी एक नेसेसरी इवल है, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस रखती है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, वो रूल्स बनाती है. इट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द नेचुरल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. और उसका कोई भी जो है वो इस किस्म का जो वो फंक्शन नहीं है कि वो इंटरफेयर करे नेचुरल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल में. नेक्स्ट, द स्टेट शुड नॉट इम्पोज restraint on the individuals. The government is the best which governs the least. As long as an individual does not deprive other of their liberty, he is free to do what he wants. यानी कि हर इंसान जो है वो फ्री है इस नेगेटिव
लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो भी करना चाहता है उसको उसके इस बेसिक नेचुरल राइट से डिप्राइव नहीं किया जाता. तो वेल डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस टुडे लिबर्टी. व्हाट इज़ लिबर्टी, इट्स डेफिनेशन, its kind or classifications. So I hope that the concept, the idea of the topic is clear to you all. Thank you.